Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let lambda belongs to capital Z and A vector equals to lambda I cap plus j cap minus k cap and B vector equals to 3 I cap minus j cap plus 2 k cap. Let C vector be a vector such that A vector plus B vector plus C vector cross C vector equals to 0 and A vector dot C vector equals to minus 17 and B vector dot C vector equals to minus 20, then magnitude of C vector cross lambda I cap plus j cap plus k cap whole square is equals to ऑप्शन से गिवन है हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट इज लेट अस सपोज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन कंडीशन क्या होती है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर. सो इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में फर्स्टली ए बी वेक्टर गिवन है हमारे पास एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इट इज ए वेक्टर plus b vector plus c vector cross c vector equals to 0. So from here it can be written as a vector plus b vector cross c vector plus c vector cross c vector, it is equals to 0. So from here it is a vector plus b vector cross c vector plus c vector cross c vector, it becomes 0 equals to 0. So from here a vector plus b vector cross c vector किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, इट इज 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a vector plus b vector is parallel to c vector. So c vector can be written as k times a vector plus b vector. So from here c vector equals to k times a vector क्या है हमारे पास lambda I plus j, lambda I cap plus j cap minus k cap plus b vector can be written as 3i minus j, 3i cap minus j cap plus 2 k cap. So from here it is equals to k into lambda plus 3i cap plus 0 j cap plus k cap. Let us suppose this is equation number फर्स्ट. c वेक्टर आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास, इट इज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द सी वेक्टर इक्वल्स टू minus 17. सो फ्रॉम हियर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द सी वेक्टर इक्वल्स टू minus 17. ए वेक्टर क्या है हमारे पास, इट इज लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद सी. सो इट इज के इंटू लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस k cap equals to minus 17. So from here it becomes k times lambda into lambda plus 3, lambda into lambda plus 3 plus minus 1 into 1 and j vector के coefficients क्या है 1 into 0 plus minus 1 into 1 equals to minus 17. So from here it is k into lambda plus 3 minus 1 इक्वल्स टू minus 17. सो फ्रॉम हियर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज k इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू minus 17. सो फ्रॉम हियर k इक्वल्स टू minus 17 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1. अब स्टेटमेंट में नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इट इज बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इक्वल्स टू minus 20. सो फ्रॉम हेयर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इक्वल्स टू minus 20. सो फ्रॉम हेयर बी वेक्टर क्या था हमारे पास 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर विच इज k टाइम्स लैम्डा प्लस 3i कैप, लैम्डा प्लस 3i कैप प्लस k कैप. सो अब इसके डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू minus 20.
so it is k into 3 times lambda plus 3 plus minus 1 into 0 plus 2 into 1 equals to minus 20, which is k into 3 lambda plus 9 plus 2 equals to minus 20. So it is k into 3 lambda plus 11 equals to minus 20, which means k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज माइनस 20 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 11. Let us suppose this is equation number, firstly this is equation number second and next it is third. So from equation second and third क्या आ जाएगा हमारे पास, k की वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी. So from here it is minus 17 upon lambda square plus 3 lambda minus 1 equals to minus 20 upon 3 lambda plus 11, which means 17 into 3 lambda plus 11 equals to 20 into lambda square plus 3 lambda minus 1. So from here it becomes 17 into 3, it is 51 lambda plus 17 into 11, it is 187 equals to 20 lambda square plus 60 lambda minus 20. So from here equation क्या आ जाएगी हमारे पास, 20 lambda square plus 9 lambda minus 207 equals to 0. So अब this is quadratic equation, इसके factors find out कर लेंगे. So it becomes 20 lambda square plus 9 lambda can be written as minus 60 lambda plus 69 lambda minus 207 as it is equals to 0. So now from here take 20 lambda common, remaining term lambda minus 3 plus take 69 common, remaining term lambda minus 3 equals to 0. So from here factors क्या आ जाएंगे, 20 lambda plus 69 plus lambda minus 3 equals to 0. So from here lambda क्या आ गया हमारे पास, minus 69 upon 20 and 3. स्टेटमेंट में गिवन क्या था हमारे पास, lambda belongs to integers. So from here लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 3 एंड माइनस 69 ओवर 20 रिजेक्ट हो जाएगी. सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3. अब लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. सो नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट इन इक्वेशन सेकंड. सो इट बिकम्स k इक्वल्स टू minus 20 upon 3 lambda plus 11. So from here it is equals to minus 20 upon 3 into 3 plus 11, which is equals to minus 20 upon 20. So k की वैल्यू क्या आ गई, minus 20 upon 20 which is equals to minus 1. k की वैल्यू minus 1 आ गई हमारे पास. अब इसको c वेक्टर में पुट कर देंगे k की वैल्यू को, जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था यहाँ पे. सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. सो सी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू k टाइम्स लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस k कैप था. सो विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस k कैप. लैम्डा की वैल्यू को भी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3. सो इट इज माइनस 1 इंटू 3 plus 3 I cap plus k cap, so which is equals to minus 6 I cap plus k cap. C वेक्टर आ गया हमारे पास. अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था, C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद लैम्डा I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप फाइंड आउट करते हैं फर्स्टली. सो इट बिकम्स, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इट इज I कैप j कैप k कैप. C वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या थे हमारे पास, इट इज माइनस 6 0 माइनस 1 एंड नेक्स्ट के कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, लैम्डा 1 1. लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3. सो इसको भी रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे. सो इट बिकम्स 3 1 1. अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं. सो इट बिकम्स आई कैप इंटू 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू
-1 प्लस माइनस जे कैप आएगा यहाँ पे, सो इट इज माइनस जे कैप इंटू -6 इंटू 1 -3 इंटू -1 प्लस के कैप इंटू -6 इंटू 1 -3 इंटू 0। सो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट बिकम्स आई कैप इंटू 1 माइनस जे कैप इंटू -6 प्लस 3 विच इज -3 प्लस के कैप इंटू -6 विच इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस लैम्डा की वैल्यू क्या थी 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आई है हमारे पास इससे वेक्टर, इट इज आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। So from here it is equals to square root of 1 square plus 3 square plus -6 square which is equals to 1 plus 9 plus 36 which is equals to square root 46। मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब स्टेटमेंट में इसका क्या फाइंड आउट करना था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना था। सो फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस लैम्डा आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, it is equals to square root 46। So now from here magnitude of C vector cross lambda I cap plus J cap plus K cap का स्क्वायर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट 46 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 46। सो अब इसको ऑप्शंस के साथ मैच कर लेते हैं, 46 विच इज ऑप्शन बी। So B is the correct answer. I hope you all understand it well. Thank you.